morning everyone and very warm welcome to one and all and welcome back to A Squared classes and very of congratulations for students who have appeared to the NEET this year, and I guess they are competing to be a doctor. Yet you have to be apply for your counseling sessions, and yes, you're going to be the doctor. Next, you have 5 years of your medical journey, which is very beautiful and it will be very thrilling. Yes. So, why after all we are learning these things, let's move on directly to our syllabus. Every day I come here, I give you few sessions of motivations, I inspire you, I teach you that what I have told you in previous class. I do many of things. I tolerate you, tolerate me, I irritate you, I keep on taking you should do like that, you should do. Today I'm not going to do that, I'm not going to take you in that way that you do this or you do that. Today I'm going to give you direction, or today I'm going to direct you. Got it? When I said, as of we have moved on to the further topic, we have begun with the second and most important topic of your ecology, that was ecosystem. How beautifully we completed organism and population, and we have begun with what? We have begun with ecosystem. Now let me give you the attribute of ecosystem, or what all things we have seen in ecosystem. I have gave you the definition of ecosystem. What is ecosystem? Types of ecosystem we have seen: natural ecosystem, anthropogenic ecosystem. Yes, we have seen that. Okay, now what we are going to see is, we have concluded that components of ecosystem involves biotic component and abiotic component. We have completed abiotic component very beautifully in very well versed manner. Now we are going to see the new important next topic as abiotic components of ecosystem. Write it the heading as abiotic component of ecosystem. हाँ बेटा. So, चलो बढ़े आगे. Abiotic component of ecosystem. What is this abiotic component? Abiotic component are those components which are related to non-living thing or non-living organism or non-living dead organism species, which involves the factors like temperature, because this is most relevant and most important factor. पहले भी बताया था, क्वेश्चन भी करवाया था, फिर भी बोल रही हूँ बेटा, ठीक है? सुन लो. टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, pH, मिनरल, विंड, प्रेसिपिटेशन, बैकग्राउंड and many other abiotic factors. If I list you, there are many other abiotic factors. ठीक है बेटा? फिर आप इसी में से और अगर लिखना चाहो तो you can even write it as topographic factor, and you can even remember it as the another most important factor which I have told you, most relevant factor which I have told you include gases. इतने सारे total abiotic factors होते हैं जिसमें से हम देख चुके हैं. We have seen temperature, we have seen light, we have seen water, we have seen soil. जाओ जाके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का वीडियो देखो, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में पढ़ा है. ठीक है बेटा? पहला हेडिंग डालिए आप सब लोग, विंड. व्हाट इज विंड? मैं विंड इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज कंफर्मिंग आफ्टर सॉइल वी विल कम टू नो विंड इजीली. ठीक है बेटा? तो पहला हेडिंग यू कैन पुट इट एज विंड. विंड इज द फ्लो ऑफ unidirectional or multidirectional air. ठीक है? What did I said? Wind is the flow of unidirectional or multidirectional air. ठीक है? Wind के बारे में पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, it says wind is responsible for migration of propagules and migration of propagules. ठीक है? Migration of propagules. What did it say? Wind is responsible for pollination, dissemination, migration of propagules
and also act as weather control. Also acts as what? Weather control. लिखते जाओ बेटा, सब समझाती हूँ, ठीक है? वेदर कंट्रोल. दूसरा पॉइंट विंड में ये भी कहता है यूनिडायरेक्शनल विंड. यूनिडायरेक्शनल विंड exploits the growth of, deviates or exploits the growth of the growth. Unidirectional wind deviates or exploit the growth of branches in the windward direction. In the wind के बारे में, wind is a flow of unidirectional or multidirectional air. wind क्या हो सकता है? either it can flow unidirectionally, either it can flow multidirectionally, और ये क्या होता है? flow of air. And it is responsible for few processes, which is pollination, dissemination, migration of propagules. That is, pollination means transfer of seeds or male gametophyte to the female gametophyte, and dissemination means, I have taught you this very well and very versed in what? In where? I have taught you this in reproduction in angiosperm. जाओ जाके पन्ने पलटो. Similarly, I have taught you migration of propagules also in those chapters. ठीक है? And also act as a weather control. It gives out the what kind of weather control can be maintained. And तीसरा point wind के बारे में ये कहा जाता है कि unidirectional wind deviates or exploits the growth of branches in windward direction. क्या मतलब होता है बेटा इसका? अगर विंड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल विंड है ये, लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? सुनो, यूनिडायरेक्शनल विंड है ये, यहाँ पे एक ट्री है जिसके ब्रांचेस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि यहाँ का जो ब्रांचेस है ना वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ विंड इसी डायरेक्शन में है ना, तो दे फॉलो दिस पाथ. व्हाट दे फॉलो? दे फॉलो दिस पाथ. समझ में आया बेटा जी? क्लियर है? कोई डाउट? गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग डाल दीजिए. विंड हमारा हो गया है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग इसी से रिलेटेड डाल दीजिए, ह्यूमिडिटी. डाल दो बेटा ह्यूमिडिटी. मैंने आपको ये इसीलिए नहीं लिखवाया बायोटिक फैक्टर में क्योंकि मैं ह्यूमिडिटी पढ़ा चुकी हूँ बेटा, अलग से एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपके उसको कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो लिख लो बेटा. ह्यूमिडिटी इज moisture present in the air. The amount of moisture present in the air is called as the humidity, and it leads to formation of, बताओ जल्दी जल्दी, आप लोग पढ़ चुके हो. It leads to formation of cloud, dew and hails. Formation of cloud, dew and hails. कोई डाउट है बेटा? दूसरी चीज एपीफाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पढ़ा रही हूं. एपीफाइट्स are found in humid areas. ठीक है? समझ में आया क्या कहा मैंने? एपीफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड ओनली इन ह्यूमिड एरियाज. अब एपीफाइट्स क्या है? मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया भी था. क्या समझाया था? क्या होते हैं एपीफाइट्स जो ग्रो होते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो, ऑर्चिड्स ले लोगे. याद है ऑर्चिड्स में मैंने आपको पॉलिनेशन वगैरह भी करके दिखाया था, बी लाइक पॉलिनेशन होता है वैप्स पे. याद आया बेटा जी? बी हाउ डू सूडो कॉपुलेशन ऑकर, जाओ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन देखो, इसीलिए पढ़ाया था. ठीक है, चलो. I have told you about the humidity. Now I'll tell you a small very important concept of topography. लिख लो बेटा topography. What is topography? Valleys, mountains, hills, slopes found in the region deals with the other characteristics of the plant. Other characteristics of the plant. ठीक है?
and life of animal also. वैसे कुछ valleys, mountains, hills related characteristics which shows or which deals with the topographic or slopes etc. found in the region which deals with the characteristics of the plant and life of that is animals. That phenomenal behavior like valleys, Sundarbans region, you can also take mountains, you can also take hills, you can also take slopes etc. are called as topographic property of an environment. These are what? Valleys में आपको different kind of living organism दिखेंगे, peaks या फिर slopes में different organism दिखेंगे, high mountains में different organism दिखेंगे, different trees different lead to different organisms surviving under them. इसीलिए topographic factor also matters a lot. Next heading आप लोग डालिए gases. एक छोटा सा concept मैं आपको बता दूं. Now we are going to see gases. फिर हम लोग background पढ़ेंगे, फिर हम लोग pH, mineral and precipitation करके राम कहानी खत्म. चलो बेटा अगला हेडिंग डालिए आप लोग. Gases, one of the important environmental or abiotic factor which influence the life of living organism. There are three important gases which involves nitrogen, which involves oxygen, which involves carbon dioxide. ठीक है, इनके फीचर्स देखेंगे. You know 4/5 of the earth has N2, that is nitrogen gas. 4/5 area of the earth is present with the nitrogenous gases, and this nitrogenous gases are converted into with the help of nitrifying bacteria. ले लो कोई nitrifying bacteria का example बताओ आप लोग. चलो azotobacteria, ठीक है, help of nitrifying bacteria or with the help of phytochemical process or photochemical process. लिख लो पहले नाइट्रोजन के बारे में. और with the help of photochemical process और biochemical process. ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस लिखो बेटा. देखो ये जो N2 है ना बेटा, ये जो प्रेजेंट है ना गैसेस में, इसको ये अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक फॉर्म और इन द मिनरल फॉर्म. इसी विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, विच इन्वॉल्व्स केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस एंड with the help of nitrifying bacteria. The very good example is azotobacter. Another gas which is important in the environment, which includes of carbon dioxide. Carbon dioxide is always a limiting factor for a plant for their photosynthesis. Yes beta, accepted. हाँ बच्चों, carbon dioxide is limiting factor for their plant. Carbon dioxide is limiting factor for the plant to perform photosynthesis. To perform photosynthesis. कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं है. ठीक है. What did I said? I said carbon dioxide is a limiting factor for the plant to perform photosynthesis. Obviously yes, बिना carbon dioxide से plant cannot make their own food. This carbon dioxide is maximum during night. Carbon dioxide is maximum during night. टाइम में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा होता है, which may also acts as dangerous for the animals and for the other living organism other than plant. ठीक है. It is stored in, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. बेटा जी जहां लिखना है, जहां स्टार बनाना है लिख लो. स्टार स्टार स्टार. Even I give you 5 star. That is, it is stored as carbonates and bicarbonates in carbonates and bicarbonates in aquatic. आपसे कोई पूछ दे कि कॉमन स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताओ, तो क्या आप लोग सेकंड चांस या सेकंड बेनिफिट ऑफ डाउट लोगे? बिल्कुल नहीं. चुपचाप से क्या टिक मार्क करोगे? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ये देखो ऐसे. कार्बोनेट्स का फॉर्मूला है, बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला है. ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इसके फॉर्म में ये
स्टोर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस आप लोग लिख सकते हैं N2। N2 हो गया, CO2 हो गया, O2 लिख लीजिए बेटा। हाँ बेटा जी, O2 सही कहा आपने। O2 is very relevant gas, that is oxygen is very relevant gas for survival of the living organisms like animals and human. इतना पता है, लिखवाने की कोई जरूरत है बिल्कुल नहीं। You know, as you go deeper and deeper into the oceanic zone, the amount of oxygen decreases. When the amount of oxygen decreases, the distribution of the organism in the ocean also decreases. Where the oxygen is more, there only the organism or the living organisms are present more over there. Because as I have told you in the stratification of lake, that when we go downwards, the oceanic or the oxygen content decreases and the rate of photosynthesis is also decreases. We mostly see what kind of? We mostly see decomposers or microorganisms in the lower zone of the oceans. कोई डाउट? तीनों गैसेस क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अपना गैसेस भी हो गया। बैकग्राउंड लिख लो आप लोग। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं बैकग्राउंड, फिर प्रेसिपिटेशन बचेगा बेटा जी, मिनरल और पीएच। दैट्स ऑल वी हैव डन विद अबायोटिक फैक्टर। पहले क्या पढ़ना चाहोगे, बैकग्राउंड पढ़ोगे या प्रेसिपिटेशन? बताओ बच्चों, प्रेसिपिटेशन पढ़ा दो, छोटा सा ही है क्योंकि ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं, बायोम्स में देख चुके हैं बेटा। ये सब डीप में पता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्यों इतना अच्छे से पढ़ा था? क्यों? ताकि इकोसिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ केक की क्रीम खा सकें। समझ में आया बच्चों? क्रीम ही तो एंजॉय करनी थी इकोसिस्टम में, इसीलिए इतना रट रट के लिखवा के आराम आराम से आपको पढ़ाया था। क्या? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वही तो सब बच्चों को ये लग रहा था कि मैम हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, इतना सारा चैप्टर, इतना एक ही चैप्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या। आप पढ़ो ना छोटे छोटे चैप्टर्स। क्या अब मुझे आपको ये चीजें वापस पढ़ाने की जरूरत है? टेम्परेचर, आपको कोई भी क्वेश्चन आए टेम्परेचर से, आई नो हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी विल गो मार्क राइट आंसर एंड कम बैक एंड कॉन्फिडेंटली से यस मैम हमने कर दिखाया, हमने करा, वी हैव डन द राइट आंसर बिकॉज आई हैव टॉट यू एंड यू शुड आल्सो गेन दैट कॉन्फिडेंस। गॉट इट? चलो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रेसिपिटेशन। चलो टिक मार्क लगा दो, हमारा प्रेसिपिटेशन भी हो गया है। ठीक है बेटा, चलो प्रेसिपिटेशन आपकी एनसीईआरटी कहती है इट इज स्नो एंड रेन। Snow and rain is referred to as precipitation. Basically, rainfall is referred to as precipitation. Due to based on this kind of rainfall, there exists a different kind of climate or there exists a different kind of biomes like, लिख लो बेटा जी, forest, tropical rainforest, deciduous forest, grassland, grassland, tundra, taiga, tundra, taiga। कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? कोई है डाउट? हो गया ना प्रेसिपिटेशन? चलो टिक मार्क लगा लो। मैम आपने पहले टिक मार्क लगा लिया, दूसरा हेडिंग डाल लो बैकग्राउंड। यू नो बैकग्राउंड में आपको मिमिक्री और फिर कैमोफ्लेज में पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज बैकग्राउंड? few organism grown in a particular area। क्या कहा? Few organism grown in a particular area tries to attend the color of those background or the color of those background surrounding to prevent themselves from prey and predators। उनको अपने प्रे से बचने के लिए वो जो बैकग्राउंड का कलर है वो कलर अपना लेते हैं अपने स्किन कलर में, ताकि वो पहचान में ना आए। उसी फेनोमेना को, उसी कैरेक्टर को, अबायोटिक कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? बैकग्राउंड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिख लो बेटा, एलिफेंट्स एंड राइनोस। क्या लिखोगे? एलिफेंट्स एंड राइनोस, elephants and rhinos appearing in the color of mud, appearing in color of mud or forestry, color of mud or forestry। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, बैकग्राउंड में क्या लिखोगे कि camel and lion
appearing at the color of sand, appearing in the color of sand, color of sand. तीसरा एग्जाम्पल लिख लो, chameleon, ये तो सबको ही पता होगा, सबका फेवरेट chameleon. We say also don't change your colors. किसके बेसिस पे कहते हैं? chameleon को ही कहते हैं don't show your true colors. ओहो, we can see your true colors. ये true colors वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा जी, सब खिचड़ी यही पकती है. क्यों? क्योंकि अपने रंग मत बदलो. लोग बोलते हैं ना आपकी हिंदी में, क्या कहते हैं हमारी हिंदी में, गिरगिट की तरह कलर मत बदलो. क्यों? क्योंकि गिरगिट क्या करता है, इस chameleon को ही कहते हैं. ठीक है बेटा, ये क्या करता है, अपने बैकग्राउंड का कलर अपना लेता है. क्यों? ताकि वो प्रे से बच सके और उसकी लाइफ को सेव हो, he can save his life, या फिर उसके लाइफ को कोई खतरा ना हो सके. ठीक है, that is what it is said. So chameleon changes its color, changes it to the background color to save itself from prey, to save itself from prey. कोई डाउट है बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक? जल्दी पूछना, आगे बढ़ने वाले अच्छे टॉपिक के ऊपर, अच्छे टॉपिक से पढ़ेंगे. ठीक है, अगला हेडिंग डाल दीजिए pH एंड फिर देखेंगे मिनरल्स. सो गिव द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग एज pH. उससे पहले कुछ रिवीजन करवा दूं? चलो बैकग्राउंड ही करवा देती हूँ बेटा. आओ देखो, बैकग्राउंड में क्या कहा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बैकग्राउंड का कलर अपना लेते हैं सो दैट वो अपने प्रे से बच सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड अडेप्टेशन. दे ब्लेंड ऑन टू द बैकग्राउंड. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है एलिफेंट एंड राइनोस, जो ट्री और मड का कलर ले लेते हैं. एग्जांपल याद रखना. Camel and lion appearing in the color of sand so that they cannot be easily recognized for their prey. ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या है, chameleon changes its color to the black or background color to save itself from the surrounding environmental prey. Clear? कोई डाउट? अगला हेडिंग डाल दीजिए pH. pH is basically related to soil. मिटा लो, फिर लिखवाती हूँ. Give the heading as pH. pH is basically what? Presence of hydrogen ions in an water, land or soil. ठीक है, वाटर के केस में pH ज्यादा इफेक्ट नहीं करता. वाटर के केस में pH is not more effective. टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट के केस में भी pH ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बेटा जी. टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट, in terrestrial land plant pH is not that effective. It is effective in soil organisms. It is effective in soil organisms, and where it is effective, it is effective in soil organism and also the land soil plants. For example, snail doesn't grow, snail and earthworm भी लिख लो बेटा, अच्छा एग्जाम्पल है. snail and earthworm doesn't grow in acidic medium, क्या कहा है बेटा, स्नेल और अर्थवर्म एसिडिक मीडियम पे ग्रो नहीं होते. उसी सबसे अच्छा एग्जांपल है पीएच का ये. दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि यूग्लेना एंड flagellates are found in acidic pH, अब इनका उल्टा हो गया, ये एसिडिक पीएच में पाए जाते हैं बल्कि स्नेल और अर्थवर्म नहीं. तो सबकी अपनी अपनी एडेप्टेशंस होती है ना, इसीलिए तो एडेप्टेशन का क्लास समझाया था. कुछ है इसमें, क्या है, याद कर लो एग्जांपल्स. क्या, स्नेल एंड अर्थवर्म डज नॉट ग्रो इन एसिडिक पीएच whereas euglena and flagellates grow only in acidic pH. आपको पता है जो डीप ओशन में रीफ पाए जाते हैं ना, उसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं. दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म and they always grow in alkaline or neutral. So coral reef grows in alkaline or mostly neutral pH.
न्यूट्रल पीएच। सो देखो पीएच के बेसिस पे भी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे वेरी करता है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया है। लैंड वाटर प्लांट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया वाटर का। लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट को भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन सॉइल लैंड प्लांट्स को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ज्यादा अफेक्ट करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, स्नेल्स एंड earthworms। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यूग्लेना एंड फ्लैजिलेट्स which have the habit to grow only in acidic environment or acidic pH, and coral reef grows only in mostly alkaline pH। दूसरा इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल दीजिए मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बायोजेनिक और अबायोजेनिक फैक्टर which is required by the plant or the living organism। If there is deficiency of the minerals, we can see foundation of some organisms. If those minerals are absent, we cannot see such kind of organism। Snails are basically found in the organism where there is rich in calcium। देख लो ये पॉइंट, स्नेल्स वहां पाए जाते हैं जहां कैल्शियम सॉइल में रिच होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहता है, where does other organisms occur? You know what? एक ऑर्गेनिज्म like I'll tell you, चलो पहले लिखो फिर बताती हूँ। राइट इट एज मिनरल्स आर, लिखो मिनरल्स, लास्ट फैक्टर पढ़ रहे हैं, बाकी सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनरल्स आर द मोस्ट important biogenic or abiogenic factor which is necessary for the growth of the plant। क्या बोला मैंने, minerals are the most relevant biogenic or abiogenic factor which is necessary for the growth of the plant। Due to foundation of this mineral there goes a different type of organism। किस जगह पे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नेल, ले लो बेटा। स्नेल आर फाउंड वेयर, स्नेल आर प्रेजेंट वेयर द soil is rich in calcium, soil is rich in calcium, ठीक है। तो किस मिनरल के ऊपर ग्रोथ ऑफ स्नेल और फाउंडेशन ऑफ स्नेल डिपेंड करता है, कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया ना, यही तो है मिनरल का जरूरत और जिसकी वजह से वो प्रेजेंस कॉज करता है, ठीक है बेटा। चलो, फ्यू प्लांट्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, अब आपको समझ में आएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का कॉन्सेप्ट। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन eats up the insectivore insects and flies for nitrogen। फ्यू प्लांट्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। टू ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी डिमांड they eat up the nitrogen, they eat up the insects and the flies, and what is requirement for them, that is the nitrogen। बेटा आपने मुझे इस पूरे पीरियड में बहुत परेशान किया, चलो मैं आपको परेशान करती हूँ। इसका एग्जांपल मैं एक दे देती हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप। जिनको ये याद होगा, मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पढ़ाया है, किस टॉपिक के अंडर पढ़ाया है, चुपचाप से जाकर के वो वीडियो देखिए, वो पॉइंट रिकॉल करिए और कमेंट में या फिर लाइव चैट वालों जल्दी से मुझे इसका साइंटिफिक नेम बताएं, किसका, वीनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम बताएं। और मैंने आपको 3 और इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम अलोंग विद देयर साइंटिफिक नेम के साथ बताया था। जल्दी से जल्दी लाइव चैट में कमेंट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन नोटिस्ड। इसी दिन के लिए पढ़ाया था ना बेटा जी, क्यों पढ़ाया था, वहां पे आपको नाम बता दिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब वो नाम ही याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ कि कितनों को याद है। हरी अप, आई वांट टू नो, आई एम वेटिंग टू सी। चलो चलो चलो, हरी अप। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट और एक एग्जांपल मैंने दे दिया है खुद ही, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी करिए। I am waiting to see, and please whoever have seen later on, please do comment। पिछला वीडियो देख के यहाँ पे कमेंट करिए। It is just a gratitude, I want to see कि आपने कितना
You know why I'm telling you to comment? Because I don't want tomorrow if you become a doctor, you feel like yes, we have done, it was all about NR ma'am helped us so much, A square classes have helped us so much, that's why we are becoming a doctor. Okay, fine. We are very privileged, we are very happy, but just pay a gratitude towards us. Just don't be free. It should be a little. So do comment it and do like it, okay? And please do reply it is for you also, because once you it's not about gratitude yaar bachche, it is once you reply, once you comment and once you become active, you recall and you know that thing, oh ye isiliye tha. आपको हमेशा याद रहेंगे वो नाम. समझ में है बेटा जी? चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें, टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना है, ठीक है? तो ये तीनों आप मुझे करके दो. You know what? There are few plants who do not grow in other lifestyle plants, or there are few organisms who do not grow in the areas or estuaries. Estuaries मतलब दूसरे पानी के जोन में, ये भी एक टाइप ऑफ वाटर बॉडी है. estuaries आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बेटा जी आप लोगों ने. व्हाट इज estuaries? लाइक इंपॉर्टेंट है लिखना, डेड सी. क्या लिखोगे? डेड सी. estuaries like डेड सी, लेक. क्या लिखना है बेटा आपको पता है? मैं बताती हूं क्या लिखो, सुनो. estuaries like डेड सी एंड ग्रेट सॉल्ट लेक. ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं दिखता. Why there is no organism growth seen in those estuaries or those water bodies? Due to excessive salinity. Due to excessive salinity. फिर आप बोलोगे मैम आप तो हमें मिनरल पढ़ा रहे हो, फिर आप बीच में salinity का कॉन्सेप्ट कहां से घुसेड़ रहे हो? Due to excessive लिखो, फिर बताती हूँ कहां से घुसेड़ रही हूँ मैं. बिकॉज ना मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, पता है मुझे इधर का टॉपिक उधर जोड़ जोड़ के पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है? सो आई एम डूइंग इट विथ यू आल्सो. एक्चुअली नॉट. सी व्हाट हैपेंस. estuaries are type of water bodies like Dead Sea and Great Salt Lake which have no organism present in between them or in them because due to excessive salinity. Or salt is made up of what? NaCl. ये भी when NaCl breakdowns it gives a mineral Na plus and chlorine minus. क्या है बेटा? ये मिनरल है. समझ में आया क्यों पढ़ा इसको यहाँ पर? इसीलिए पढ़ा, इसलिए नहीं कि मेरे को जोड़ जोड़ के पढ़ाने की आदत है. थोड़ा बातों पे ना इस टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है? चलो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर एक सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है ना, इफ सॉइल, राइट इट, if in a soil there is deficiency of nitrogen, we can see cyanobacteria and nitrogen fixing bacteria over there. Cyanobacteria and nitrogen fixing bacteria in the soil. एक कमी की वजह से ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखा ना बेटा जी? वैसे ही एग्जाम्पल इसका रोल क्या है? मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मिनरल आर फाउंड इन दोज लोकेलिटी, दोज एरियाज, दोज टेम्परेचर, दोज सॉइल, दोज estuaries, those landmarks, etc, etc, etc. That's all बेटा जी. We have completed our abiotic factor in depth. अब तो बेटा जी कुछ भी नहीं बचा. सीरियसली अगर ये जो 4-5 जो छोटे छोटे टॉपिक रह जा रहे थे ना इकोसिस्टम के, अब आपसे कोई अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के पूछे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पूछे, या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पूछे, आई डोंट थिंक आपको कोई रोक पाएगा इस टॉपिक में, ठीक है? टेम्परेचर देखा, लाइट देखा, वाटर देखा, सॉइल देखा, पीएच भी अच्छे से देखा कि नहीं देखा? देखा ना बेटा? देखा. पीएच कंक्लूड, मिनरल डन, विंड डन, प्रेसिपिटेशन डन, ह्यूमिडिटी भी पढ़ा दिया मैंने. जो पढ़ाया था वापस से एक और एग्जांपल के साथ पढ़ा दिया, ठीक है? गैसेस, टोपोग्राफी, बैकग्राउंड. नाउ सब complete, abiotic factor complete. Give the very important very next topic of your session, which includes of productivity, and we are moving on towards the cream, or we are moving on towards the very important part of the chapter productivity. इस साल 2020 में भी उससे related question पूछे गए थे and पूछे जाते हैं बेटा जी. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जब मैं आपको प्रोडक्टिविटी पूरा पढ़ा लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2020 ने एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? चलो, गिव द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी नेक्स्ट हेडिंग एज प्रोडक्टिविटी. कम ऑन बेटा. प्रोडक्टिविटी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. क्योंकि अगर हम लोग इको स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर देखते हैं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, फाइल देखते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा अलग सा कॉन्सेप्ट इको स्ट्रक्चर फंक्शन में ही पढ़ा दूंगी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इट विल बी इजी फॉर अस टू कोरिलेट व्हेन वी आर लर्निंग विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एबिलिटी। वैसे अगर आपकी एनसीईआरटी में देखा जाए बेटा लोग, तो एनसीईआरटी सीधा एडेप्टेशन भी ये सारी चीजें छोड़ के 4 बेसिक फंक्शन पे आ जाती है। क्या क्या होते हैं फंक्शन वो, बट यू नो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू एंड प्लीज डू राइट इट। ओके, ecosystem structure, what are the structure of ecosystem? क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स, पहला होगा स्पीसीज कंपोजिशन, ठीक है, पहला क्या होगा? स्पीसीज कंपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्पीसीज कंपोजिशन, सेकेंड वन इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड थर्ड वन इज ट्रॉफिक स्टेट, या फिर ट्रॉफिक लेवल भी लिख सकते हो बेटा लोग, ठीक है, ट्रॉफिक स्टेट। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग क्रॉप। Structure of ecosystem involves 5 basic components, that is species composition, stratification, trophic state, standing state and standing crop। नाम याद रखना, कोई डाउट? 5 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है बेटा। चलो पहला देखते हैं स्पीसीज कंपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है। लेट्स सी इट नाउ। स्पीसीज कंपोजिशन की मैं अगर बात करूं तो इट इज, और एनुमरेशन लिख लो, इन्वॉल्वमेंट छोड़ दो, इट इज एनुमरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन it is enumeration and identification of the species, it is enumeration and identification of different species, plant species and animal species in an ecosystem, एक इकोसिस्टम में कैसा आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि ये प्लांट स्पीसीज है, ये एनिमल स्पीसीज है, उसके कितने कॉम्पोजिशंस हैं, उसके कितने टाइप्स है, उसी को हमने क्या कहा? स्पीसीज कंपोजिशन। कोई डाउट है बेटा इसमें? सिंपल तो है डेफिनेशन, है ना, इजी। 2 चीजें याद रखना, एन्यूमरेट और आइडेंटिफाई करते हैं किसको? डिफरेंट प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज को। उसी फेनोमेना को किसको कहते हैं हम लोग? स्पीसीज कंपोजिशन। स्ट्रैटिफिकेशन में आपको पढ़ा चुकी हूं, फिर भी पढ़ा देती हूं क्योंकि इसमें है एक स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। प्लीज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का वीडियो रेफर करें, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन इज बेसिकली वर्टिकल लेयर्ड अरेंजमेंट, वर्टिकल लेयर्ड। बताओ नीट वालों, मेरे बैच वालों बताओ, आपको बताया था ना। चलो जल्दी जल्दी लाइव सेशन में रिकॉर्ड करो और बताओ व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। आई वांट टू सी विद एग्जांपल। वर्टिकल लेयर्ड arrangement of different zone of attribute, किसी भी चीज का डिफरेंट वर्टिकल जोन में डिवाइड करना या फिर उसको डिफरेंट वर्टिकल सेक्शंस में अरेंज करना, उसी को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। देयर आर 4 to 6 स्ट्रैटा ऑफ। स्ट्रैटा क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे एक सब पार्ट एक बेसिक स्ट्रैटिफिकेशन के, उसी को हम लोग स्ट्रैटा कहते हैं। देयर आर 4 to 6 स्ट्रैटा ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। स्ट्रैटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता दी, बस मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया है। हमने स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट भी देखा है, हमने स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर भी देखा है, लिटोरल, लिम्नेटिक, फिर लिम्नेटिक के 2 पार्ट्स प्रोफंडल एंड बेंटिक था ना बेटा जी। अब ये मत कहना कि नहीं मैम ये भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ओके। ट्रॉफिक स्टेट क्या कहता है? इट इज बेसिकली arrangement or presence of different food chain
different food chain or food web, food chain or food web. Very good example of it is, क्या है उसका एग्जाम्पल पता है आप लोगों को? ट्रॉफिक स्टेट का फूड वेब और फूड चेन ऑफ ग्रास इन ग्रासलैंड पढ़ेंगे। उसमें और आपको एक जोन, अगर पिरामिड के हिसाब से बात करूं तो एक जोन में कितने फूड चेन ऑक्योर करते हैं उसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ये एक ट्रॉफिक हो गया, दो ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो वही क्या कहता है कि अरेंजमेंट और दी प्रेजेंस ऑफ different food chain और food web in a trophic level is called as trophic state। ये एक हमारा पिरामिड है, देखना बच्चों ध्यान से, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं। यहाँ पे अलग फूड, यहाँ पे अलग फूड, यहाँ पे अलग फूड, यहाँ पे अलग एनर्जी, अलग एनर्जी, अलग एनर्जी। आगे और स्टैटम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आप लोग याद रख लो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है फूड वेब चेन ऑफ ग्रासलैंड। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। स्टैंडिंग स्टेट क्या कहता है? क्या कहता है बेटा जी, कोई तो बता दो। स्टैंडिंग स्टेट ये कहता है कि इट इज बायोमास पर यूनिट एरिया is called as standing state। स्टैंडिंग क्या कहा मैंने? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बेटा जी देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग का बायोमास पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना है उसी को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। नाउ कम्स, उससे पहले मैं आपको स्टैंडिंग स्टेट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि स्टैंडिंग स्टेट चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट मिलेंगे इसलिए मैं बता रही हूं। स्टैंडिंग स्टेट चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, ecosystem to ecosystem। क्या कहा मैंने? स्टैंडिंग स्टेट चेंजेस फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम और सीजन टू सीजन के हिसाब से स्टैंडिंग स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी अमाउंट चेंज होते रहती है, इसीलिए क्या हो जाता है? स्टैंडिंग स्टेट भी बदलते रहता है। कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, या फिर हेडिंग तो डाला हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लिख लीजिए। स्टैंडिंग क्रॉप, it is the amount of living organism, amount or number of living organism, number of living organism। पता है आपको? इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टैंडिंग स्टेट ऑकर्स एट एनी टाइम, किसी भी टाइम को ये मेजर ले लो, वो भी आपका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। किसी भी, अरे रात के 24 घंटे बाद भी जाकर के मेजर ले लेना बेटा जी, ये स्टैंडिंग स्टेट आपका होगा, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप, it is an amount of number of living organism, it is amount or number of living organism present or biomass present in a particular or in per unit area। जब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो स्टैंडिंग स्टेट है, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो स्टैंडिंग क्रॉप है। डिफरेंस समझ में आया? इट कैन ऑकर एट एनी टाइम, इट ऑकर एट, it occurs or changes are seen, or it occurs or changes are seen in particular time। यहाँ पे जो changes होते हैं बेटा वो particular time पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे fixed time, any time पे नहीं होता, ये fixed time पे होता है, ठीक है। यहाँ जो होता है वो dry matter is more considered than wet matter। Dry matter is more considered than wet matter because dry matter has, after the season on changes, the wet matter, the liability of wet matter also goes changes, but dry matter remains in a fixed amount। That's why it is said standing crop is basically depend on dry matter, standing state basically depends on change in season, change in ecosystem,
जैसे चेंज हुआ वैसे, और नॉन लिविंग का प्रोडक्शन नॉन लिविंग के बायोमास पे डिपेंड करता है। ट्रॉफिक स्टेट लेवल, कितना कौन से सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल है एक ट्रॉफिक लेवल पे, वो देखता है। स्ट्रैटिफिकेशन, तीसरी बार पढ़ा रही हूँ बेटा, अब और पढ़ाओ? बिल्कुल नहीं। आई नो you have become my kids now, you are NR मैम्स kids, so you gonna work in that way, ठीक है। एक पॉइंट अच्छा था इसमें, 4 to 6 स्ट्राटा होते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। व्हाट इज स्ट्राटा पता होगा, बिल्डर्स, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज, ये जो पर्टिकुलर एक एक लेवल की बात हो रही है ना, इसी को स्ट्राटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है बेटा। स्पीसीज कॉम्पोजिशन, फिर मैंने आपको बताया एन्यूमरेशन और आइडेंटिफिकेशन। एक स्पीसीज के बारे में एन्यूमरेट करना, उसको पहचानना, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है, उसके क्या फंक्शंस है, उसी को हमने क्या कहा? स्पीसीज कॉम्पोजिशन। नाउ गिव द वेरी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज इकोसिस्टम फंक्शन। How do ecosystem functions and what are the important components for the functioning of ecosystem requirement? So give the topic as functions of ecosystem or ecosystem functions. Come on. What is this ecosystem function? What it does, it says that, ये बेटा समझना क्या लिखा? Plants and animals carry out their life processes in a controlled way. How it is like that? I'll tell you. Plants depend on soil for, लिख लो, plants depend on soil for mineralizations or minerals process. From soil they appear organic matter. Similarly, animals depend on herbivores for their primary consumers. For their, are they what? Herbivores or what? They are primary consumers. ये सीधा क्या खाते थे? प्लांट्स। पिछले क्लास में जाके देखो, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो वापस रिवाइज करो। चलो बच्चों, what animals? Herbivores are what? Which eat plants, and these animals are totally depend on herbivores or primary herbivory. This interlinked relation is need to be balanced, and it works, this whole ecosystem, animals plant ecosystem works on 4 basic things. What do they works on 4 basic components, which involves productivity, decomposition, एक एक डिटेल में देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, decomposition, energy transfer and nutrient cycle, ठीक। There are 4 balance factors which involves functions for proper productivity, decomposition, energy flow। एनसीईआरटी आपकी क्या, मेरी, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस फैक्टर में ये चारों चीजें पाई जाती है ना, ये चारों चीजें पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अ फुल कंप्लीट इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? फुल इको सिस्टम। क्या कहते हैं? अ फुल इको सिस्टम। समझ में आए यहां तक? जिस इकोसिस्टम या फिर जिस स्ट्रैटम में, ये सबस्ट्रैटम में ये चारों चीज, प्रोडक्शन, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, सब कुछ दिखता है, उसी को हम लोग एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहते हैं। और जिसमें स्ट्रक्चर भी होता है इकोसिस्टम का और फंक्शनल एस्पेक्ट भी होता है। सबसे एक अच्छा सा एग्जांपल आपके ही एनसीईआरटी से मैं समझाती हूँ, पॉन्ड इकोसिस्टम। बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। चलो एग्जांपल देती हूँ इकोसिस्टम फंक्शन का। पॉन्ड इकोसिस्टम लिखना बेटा, क्या लिखना? पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या लिखोगे? राइट इट विद अ फ्रेश पेन। अ पॉन्ड इकोसिस्टम is self-sustained ecosystem which has structure and function aspect both, and
functional aspect of ecosystem, which has structural and functional aspect. Pond ecosystem is self-sustained ecosystem. Self-sustained, न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत कॉमनली सुनते होगे बेटा, self-sustained. सस्टेन मतलब बचा के चलने के लिए. मैं आपको बता दूं, today's world we basically believe in sustained development. What does that mean in sustained development? We meant that sustained development is if we are using some amount of natural resources today, tomorrow it should be helpful, tomorrow it should be useful for our future generations. कल के जनरेशन के लिए जब वो चीजें हम बचा के यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वैसे ही पॉन्ड एक सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ कंक्लूडेड इकोसिस्टम है. सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम है which has structure and functional aspect of ecosystem. अब बेटा जी मैंने आपको स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम बताया था स्पीसीज कंपोजिशन, ट्रॉफिक लेवल, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग रेट, स्टेट. यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटा? तो वो तो हो गए स्ट्रक्चर की बात. फंक्शनल की बात करूं, क्या था? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल. स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए. ठीक है बेटा, चलो और देखो. So when these two aspects of an ecosystem is present in an ecological hierarchy or an ecological topic, that is called as what? It is called as a complete ecosystem. And pond ecosystem is self-sustained ecosystem. मैं आपको समझाती हूँ. स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं उसको समझा दूं, तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बोथ. देखना बेटा, स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं? देखना, कंटेन्स biotic factors. And what are the abiotic factors? I'll write it here. That is biotic factors and abiotic factors. So I said you write structure includes, contains biotic and abiotic factors. कहा था मैंने आपसे बेटा? बिल्कुल कहा था. आपने बोलोगे हाँ मैम आपने कहा था हम लोगों से कि structure includes biotic factors and abiotic factors. ठीक है? What are these abiotic factors? इसके कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर जो है जो पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं इंक्लूड वाटर. आपको भी पता है. ठीक है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं. डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर जो डाउन और एकदम शैल. पॉन्ड क्या होता है बेसिकली बच्चा? पॉन्ड इज व्हाट? शैलो वाटर बॉडी और इन वाटर इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन शैलो एरियाज और शैलो लैंड. शैलो मतलब जिसकी ज्यादा गहराई नहीं होती. ठीक है, वैसे एरियाज पे वाटर बॉडी अगर प्रेजेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्ड. तो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीचे होंगे एकदम सबसे शैलोएस्ट, सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन पे वो प्रेजेंट होते हैं. सोलर एनर्जी, ऑब्वियसली बच्चे सन से एनर्जी आ रही है तो सोलर एनर्जी प्रेजेंट तो होगी. कोई डाउट? बिल्कुल नहीं. साइकिल ऑफ टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन हो रहा है, सन रेज गिर रही है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, अर्थ पे गर्म ठंडा, डेजर्ट ड्राई सब दिख रहा है. ठीक है, तो ये सब किस पे? अर्थ पे हो रहा है. तो ये बेसिकली किसका फिनोमेना हुआ? पॉन्ड में ये सारी चीजें होती है. बिल्कुल होती है. तो क्या उसमें अबायोटिक फैक्टर है अबायोटिक फैक्टर. और हमने वो सारी देख ली. कौन कौन सी? वाटर है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है, सोलर एनर्जी है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर है. यही सारी तो अबायोटिक फैक्टर्स आपको बताई थी. फिर अगर सॉइल है तो पीएच भी होगा, वाटर है तो पीएच भी होगा, गैसेस भी होंगे, और भी चीजें होंगी ना? क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगी. इसीलिए तो अबायोटिक फैक्टर समझाया था आपको इतने अच्छे से. फिर आगे बढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स पे. जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, ऑल लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? बायोटिक फैक्टर्स. सबसे पहले उसमें तीन चीजें होती है. प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको इकोसिस्टम में बताया था. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, and then we have seen different types of consumers. First producers देखा, consumers देखा. consumers के दो टाइप के देखे, और फिर मैंने अपने सैप्रोट्रॉप्स बताए थे जिसको हम लोग डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसीडर किया था. डीकंपोजर्स देखा था. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, तीन चीजें देखी थी. प्रोड्यूसर्स वो होते थे जो अपने फूड खुद बनाते थे. प्रीवियस क्लास याद करो बेटा जी, बनाते थे. इसका एग्जाम्पल अगर पॉन्ड में क्या क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन, फ्लोटिंग प्लांट, सम लार्ज एल्गी. एक प्लांट पे आपको ग्रीन कलर का शिविल्डेड एल्गी नजर आया होगा. शैबी एरियाज में होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे. ठीक है, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट होंगे. जो प्लांट है वो फ्लोटिंग होंगे.
बताया था वाटर के केस में, ये सारी चीजें आसान हो, ठीक है, समझो। एंड फ्यू एम्फीबियस प्लांट्स लाइक प्लांट्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल में भी दिखते हैं और लैंड वाटर में भी दिखते हैं। तो वैसे कुछ प्लांट्स, फ्यू एम्फीबियस ऑर्गन्स लाइक ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग वगैरह प्रेजेंट होंगे, स्नेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, और कुछ अमाउंट्स ऑफ स्नेक्स भी पाए जा सकते हैं। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। देन कम्स बायोटिक फैक्टर, कंज्यूम होता है, कंप्लीट होता है हमारा प्रोड्यूसर से। उसके बाद अगर प्रोड्यूसर्स है तो कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स भी होंगे। कल देखा था बेटा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। कंज्यूमर में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स बताई थी। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। देखना बेटा, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ कंज्यूमर्स का एग्जांपल दूं तो लिख लो बेटा, जूप्लैंक्टन्स एंड ड्वेलिंग एनिमल्स बॉटम, जो नीचे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ड्वेल करते रहते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। अगर मैं आपको प्राइमरी कंज्यूमर की एग्जांपल दूं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कल बताया हुआ कैसे, उसके एग्जांपल्स है जूप्लैंक्टन, लार्वा, टैडपोल एंड फ्यू फिशेस। उसी के सबसे बेहतरीन एग्जांपल है टैडपोल, मत भूलना बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अब प्राइमरी कंज्यूमर्स किसके बारे में बात हो रही? पॉन्ड के बारे में बात हो रही बेटा। किसमें हो रही है? पॉन्ड के केस में प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, उसकी बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कार्निवोर्स। उसके सबसे अच्छे एग्जांपल, एंड दे आर रिफर्ड टू एज प्राइमरी कार्निवोर्स। समझ में आया? पहला ग्रुप आता है ना, इसलिए इनको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, which includes water, scorpions, water beetle, dragonfly, larva, hydra, etc. कोई डाउट यहाँ तक? I don't think so. तीसरा जो कंज्यूमर आता है, टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिनको कोई नहीं खाता है, सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर के जस्ट नीचे होते हैं, they are also called as secondary carnivores and they are like large fishes, many water birds, etc. ठीक है। तो मैंने आपको बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर समझा दिया, कंज्यूमर समझा दिया। आपका सवाल होना चाहिए कि मैम इसमें डीकंपोजर्स क्या होंगे? नहीं होते क्या? नहीं होते, पॉन्ड में डीकंपोजर्स होते हैं बेटा जी। और वो कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पर, डी कंपोजर्स। तो सी ये हो गया, ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर्स, सी डीकंपोजर्स। व्हाट इज डीकंपोजर्स? which eat, saprotrophs बोला था उनको, which eats on dead decayed matter of an organism. कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, accepted? Yep. So which deals on dead decayed matter. Decomposers are detrivores, which involves bacteria, fungi, few viruses also. You don't consider virus, but ले लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। Mostly bacteria, fungi, protists, flagellates, ये सारे एक वेरी गुड एग्जाम्पल क्या है, ये सारे वेरी गुड एग्जाम्पल है डीकंपोजर्स के। नाउ गिव द वेरी नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, नाउ गिव द वेरी नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इंक्लूड्स ऑफ क्या? पहले तो प्राइमरी इकोसिस्टम, एक पॉन्ड में उसका स्ट्रक्चर यूनिट देखा, फिर आपको बोलना चाहिए कि मैम डेफिनेशन में फंक्शनल भी लिखवाया है, आपने हमें फंक्शन बताया क्या? नहीं। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज फंक्शनल इकोसिस्टम। क्या बोलूंगी? व्हाट इज फंक्शनल इकोसिस्टम। सो गिव द वेरी नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग एज फंक्शनल इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। मिटा दो और लिखो, चलो बेटा जल्दी करो, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, पॉन्ड इकोसिस्टम का फंक्शन देखिएगा बेटा, ठीक है? फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है? पॉन्ड इकोसिस्टम क्या कहता है? बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स बाय कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी कमेंट में, लाइव चैट वाले जल्दी रिप्लाई दो। फोटोसिंथेसिस। लेट मी सी योर एनर्जेटिक, लेट मी सी योर कॉन्फिडेंस, लेट मी सी योर पेशेंस, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, sun, make their own food, that is they convert inorganic matter into organic matter by the process called photosynthesis.
कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछो बेटा, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो, this autotroph is eaten by this, wait, ये जो प्रोसेस है ना ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन का, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ this autotroph is eaten by herbivores और कंज्यूमर्स। लिख लो, कंज्यूमर्स में भी कौन? तो क्या लिखोगे आप लोग? हेर्बीवोर्स, ठीक है। एंड दिस हेर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स में प्लांट को जो खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को जो खाते हैं उनको हेर्बीवोर्स कहते हैं। समझाया था आप लोग को, इसीलिए समझाया था, ठीक है। चलो, consumers में they are called as herbivores, and when these herbivores produce their organic matter, how? After eating plant, ठीक है। प्लांट को खाने के बाद वो अपने ऑर्गेनिक मैटर को बनाते हैं। दे फॉर्म देयर, डायग्राम को समझना बेटा, ठीक है, मैं सब कुछ ओरली समझा रही हूँ। They form their own organic matter in the body, and these herbivores are eaten by carnivores। यही तो नियति का, क्या बोलते हैं आप लोग, विधि का विधान। समझ में आ रहा है? हिंदी बोल रही हूँ मैं, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर बेटा, क्या कहा मैंने? कंज्यूमर्स, ये ऑटोट्रॉफ्स दे आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, उसको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या था ना, ठीक है। उस हर्बीवोर्स आफ्टर ईटिंग प्लांट दे मेक देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर, दे फॉर्म देयर ओन फूड एंड दे आर ईटन बाय कार्निवोर्स। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ भी तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ ना, तभी तो वो कार्निवोर्स के लिए हेल्पफुल है। उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी। इन दोनों स्टेजेस में क्या प्रोडक्शन दिख रहा है? दिख रहा है। मैम जल्दी जल्दी बोलो, हाँ मैम दिख रहा है। प्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट मत रखना, है तो पूछो, लाइव सेशंस में पूछो बच्चों, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है कोई डाउट इसमें? है? बिल्कुल नहीं है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और इसी दोनों को मिला के क्या कहा हमने? इसी दोनों को मिला के वी हैव कॉल्ड देम एज प्रोडक्शन। अब ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। When those carnivores are dead, again फिर उनको प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स खाएंगे। सेकेंडरी कार्निवोर्स को कोई नहीं खाता, वो सिर्फ खुद ही मर जाते हैं। एग्जांपल से then they comes like what? They die themselves, they are the own top of organism, top of carnivores। उसके बाद there comes the role of decomposers। Decomposers like microorganisms, sculptures, vultures, fungi, protists, etc. लिख लो बेटा, fungi, protist acts on this body or dead body of consumer and decompose them। क्या करते हैं वो लोग? Decompose them and make them and give the important minerals to the soil, ताकि वो minerals फिर से reuse हो सके। समझ में आया? They decompose and give the minerals use। After decomposing the minerals, after decomposing the dead body of this consumers, herbivores or carnivores, they decompose the minerals and they keep the minerals again into the soil, and these minerals are used by what? These minerals are used by plant for their own benefit, for their own profit, again to grow। रिसाइकलिंग हो गया ना बेटा जी, डिकम्पोजिशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया था, डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज, रिसाइकलिंग भी हो गई, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल भी हो गया। न्यूट्रिएंट वापस से आ गया सॉइल में, न्यूट्रिएंट वापस से आ चुका है सॉइल में।
न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी हो गई। फिर आप कहोगे कुछ तो मिसिंग है, चौथा क्या था, तीसरा वाला था बीच का एनर्जी फ्लो। प्लांट से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हुआ होगा, ऑब्वियसली जब इसको इसने खाया होगा देयर विल बी लॉस ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। Again there is loss of few amount of energy when these consumers they release energy in the form of heat। जैसे कि एग्जाम्पल, हम कंज्यूमर्स है, वी ईट फूड, वी जनरेट हीट, बॉडी गिव्स आउट हीट, दैट इज व्हाट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना वो, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? हुआ ना बेटा जी, ठीक है? तो इन्होंने भी एनर्जी लूज किया सम अमाउंट ऑफ, अगेन एनर्जी फ्लो कम्स डाउन, एनर्जी लॉस, यहां पे भी एनर्जी लॉस, डिकम्पोज करते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं। फाइनली क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनिडायरेक्शनल वे। फर्स्ट लॉ याद आया थर्मोडायनेमिक्स का, यूनिडायरेक्शनल इन पासेज ऑफ एनर्जी, ठीक है? चलो, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन यूनिडायरेक्शनल वे, ये भी दिख गया, चारों फैक्टर्स दिख गए बेटा जी हम लोगों को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, है एक पॉन्ड कंप्लीट इकोसिस्टम। देख लिया ट्री मैप कितना ब्यूटीफुल बना है, हाँ थोड़ा ब्यूटीफुल तो है, कैसे समझाया समझा देती हूँ फिर से, ध्यान से समझना, ठीक है? लुक एट व्यू, इसी में समझ में आ जाएगा। Autotrophs with the help of solar energy convert their inorganic matter into organic matter। पक्का? डन? यस मैम। इस टाइप पे जब ये प्रोडक्शन होता है इसी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, कोई डाउट? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच इनऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। नाउ दिस ऑटोट्रॉफ और दिस प्लांट्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। दिस हर्बीवोर्स फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर इन द बॉडी and those herbivores and those organic matter are useful by the carnivores। किसके लिए यूजफुल होते हैं वो? कार्निवोर्स। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज रिफर्स टू एट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑटोट्रॉफ और कंज्यूमर, दैट इज व्हाट, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। लिख लो बेटा जी, यहाँ पे भी लिख लो, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में प्रोडक्शन दिख गया मैम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इनका, ये बेसिकली डिकम्पोज करता है डिकम्पोजर्स। दे आर व्हाट, दोस डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वल्चर्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, ठीक है? चलो, दोस डिकम्पोज देम एंड क्रिएट फ्यू मिनरल्स। Those minerals are used present in the soil for remineralization or for reuse purpose। कोई doubt? Absolutely not। तो minerals are for reuse purpose। तो decomposition दिख गया, second important function unit का point। mineral का nutrient reuse हो गया, recycle nutrient recycling हुआ बेटा जी, हुआ। एनर्जी फ्लो कैसे हुआ? ऑटोट्रॉफ से जब वो कंज्यूमर्स में आए, कंज्यूमर से जब वो डिकम्पोजर्स में आए, दे लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, लूज सम एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट, फ्लो ऑफ एनर्जी। दिख गया? दिस इज व्हाट, एक पॉन्ड में ये सारे इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल, इकोसिस्टम फंक्शनल, एवरी यूनिट, एवरी एस्पेक्ट टेक्स प्लेस। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट पॉन्ड इकोसिस्टम। What do we call them? We call them as complete pond ecosystem। कोई doubt? That's all for today, and very much thank you for watching this interesting session। I know you all have been tired. You all been tired from watching. When it comes to almost 1 hour 40 minutes or 1 hour, you basically get segregated. So I do usually make sure that video runs for only 1 hour or even hardly for 45 minutes, because I don't want my students to get bored। I want they should learn the concept but in a particular way, but in an exciting way। पढ़ने के लिए पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, ठीक है? आज नहीं पसंद आए कल देख लेना, लेकिन जितना देखना ढंग से देखना बच्चों, ठीक है? This is my hidayat to you, okay? Every day I am learning few Hindi words, few good Hindi words, so that it makes an impact, okay? So yes, as I said, if you really want to give a hope for us, do like our video and do comment in the live sessions, and yeah, do comment in the comment box also। आपके लिए comment box हमेशा खुला हुआ है, जब आप वीडियो देख सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, you do comment there and you give us the response
we people really wait for your response, and we really see what comments have been given by our kids, so that it is actually for you people. I don't want you to learn freely and go from my side. फ्री में डॉक्टर बनने के बाद याद रहेगा ना, एनआर मैम ए स्क्वायर क्लासेस हैव हेल्प्ड अस दिस मच, ये बहुत हो गया आज के लिए। सब्सक्रिप्शन दे दूं आज की क्लास का या फिर डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो फिर लिख लो बेटा क्या क्या पढ़ा आज। पहले वाले क्लास में अबायोटिक फैक्टर कंप्लीट कर लिया था, आज के क्लास में देखा व्हाट इज अबायोटिक फैक्टर, what are components of abiotic factor, temperature, soil, water, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट पहले अच्छे से पढ़ चुके थे, इन चारों को नहीं पढ़ाया, आपको भी पता है कितने अच्छे से एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो है, ढंग से जाके देखिए बेटा जी, ठीक है। चलो, और फिर उसके बाद फिर हम लोग बढ़े किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखा, पॉन्ड का एग्जांपल पढ़ा अच्छे से, डेप्थ में क्लियर किया, एंड वी कंक्लूड ओवर हियर, ठीक है। And tomorrow's class will be more interesting because we will be beginning with the productivity, decomposition, then nutrient cycle, recycle and energy flow. And that's what we will complete with the function of ecosystem. Production level देखेंगे, कहाँ किस amount में क्या product होता है, factors affecting productivity भी एक छोटा सा concept है, वो भी देख लेंगे बेटा, ठीक है। And thank you very much. Do watch the video. Any doubt, please do ask in the comment. And once again, thank you. Stay home, stay safe. जिसने नीट दिया, all the very best. For next year जिसको देना है, उनको भी very best. क्योंकि अगर जिसका नहीं हुआ, there is no need to be upset. There is no need to think and like, आज चला गया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, ठीक है। बट करना जरूरी ही, that is important that what we do. It's not to give up, ठीक है। आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है. Let's meet tomorrow with a new session, new topic. Thank you.